ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کی، جن کا کہنا ہے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب ٹاؤن کو دی جانے والی رقم کے حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ کس مد میں خرچ کے لیے دی جاتی ہے اور حساب بھی بتائیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امیر کراچی جماعت اسلامی منم ظفر کا ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا مرتضی وہاب کو صرف جماعت اسلامی کا نو ٹاؤن ہی یاد آئے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کے ٹاؤن کو ہر ماہ 1 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ یہ رقم OZT کی مد میں وفاقی حکومت سے ہو کر صوبائی حکومت سے بلدیاتی اداروں کو ملتی ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کی حالت بھی تو بتائیں، ہمارے ٹاؤن کے بارے میں سوچ کر الزام لگائیں۔ جماعت کے ہر ٹاؤن کو 90 کروڑ سے زائد رقم OZT کی مد میں ملے، اس میں صرف تنخواہوں کی مد میں 70 کروڑ 34 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوتے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب پچھلے مالیاتی سال جولائی سے لے کر جون تک جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز کو ایوریج پر منتھ 90 کروڑ 76 لاکھ 64 ہزار 416 روپے OZT کی مد میں دیے گئے۔ اس OZT میں سے صرف سیلری کی مد میں پر منتھ 70 کروڑ 34 لاکھ 48 ہزار 586 روپے 78% سیلری کی مد میں جا رہے ہیں۔ فائنینشیل اسسٹنس، میڈیکل ڈسبرسمنٹ، لیو انکیشمنٹ، پیٹرول کے پیسے، گروپ انشورنس، پروویڈنٹ فنڈ، صرف گلشن ٹاؤن کی مثال دوں گا، 7 کروڑ 25 لاکھ 12 ہزار 259 روپے وہ ہیں کہ جو ٹاؤن نے اپنے ریسورسز کے ذریعے صرف تنخواہوں کی مد میں دی ہیں۔ منم ظفر نے کہا کہ اگست کو ہونے والی بارشوں نے قابض میئر مرتضی وہاب اور صوبے پر قابض 19 پیپلز پارٹی کے 13 چیئرمینز کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ 230 ملی میٹر بارش ہوئی جس میں پورا شہر ڈوب گیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ریڈ لائن اور کریم آباد انڈر پاس کب مکمل ہوگا، عوام کو تاریخ دی جائے۔ جو اون ریسورسز کے ذریعے ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ان ترقیاتی کام میں سندھ ریونیو بورڈ ابھی ایک فائل اوکے ہوئی 8% کاٹ لیے گئے، انکم ٹیکس 5%، تو سیدھا 13% تو وہ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ نااہل 17 سال سے صوبے پہ براجمان پیپلز پارٹی کی حکومت کر کیا رہی؟ منم ظفر نے مزید کہا کہ بارشوں سے 15 ارب روپے کا نقصان ہوا، مختلف مارکیٹوں میں پانی جمع رہا اور سامان تباہ ہو گیا۔ ترقیاتی فنڈ ایک پیسہ نہ دے اور ٹاؤن پر یہ بھی بوجھ کہ وہ اپنے وسائل سے 20% رقم پینشن کی مد میں الگ رکھے گا۔ ٹاؤن جو ترقیاتی کام کراتا ہے اس میں بھی مختلف مد میں رقم کی کٹوتی ہوتی ہے۔ مرتضی وہاب کو میئر بنانے کے لیے تمام قوانین بدل دیے گئے۔ کراچی پانی سے نہیں، بد انتظامی اور ان کی کرپشن سے ڈوبا ہے۔ سارے ادارے میئر کراچی کے ماتحت ہوں، اچھی بات ہے۔ اس وقت بھی تمام اداروں کی اس موقع پر پریس کانفرنس میں اپوزیشن لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ، جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز عاطف علی خان، ظفر احمد، ڈاکٹر فواد احمد، فراز حسیب، رضوان عبدالسمیع، محمد یوسف، نصرت اللہ اور ترجمان جماعت اسلامی کراچی زاہد عسکری بھی موجود تھے۔ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ بلدیاتی ملازمین کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کی پینشن عادی ہو گئی 2024 اور اس کے بعد بھرتی ہونے والوں کی کٹوتی سے ہی پینشن ملے گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ ہوگا۔ سرجن یونین کے صدر ذوالفقار شاہ نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کی۔ آدھا بڑھ رہے ریٹائر ملازمین مر رہے ہیں، پینشن ان کو ملنی نہیں ہے، اور جو لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ بلدیاتی اداروں میں نوکری مل جائے ان کے لیے تو بہت ہی بری خبر ہے۔ گھر کا زیور بیچو، پلاٹ بیچے باپ اور بلدیاتی ملازم بنا دے اس کو، اور بعد میں جب وہ ریٹائر ہو تو اس کو کچھ نہیں ملنا۔ ابھی ہم آپ کو بھیانک خبریں سنواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب ریٹائر ہوں گے نا وہ بھی اب ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ بڑی بھیانک خبریں بھائی میرے پاس، ٹھیک ہے۔ میں آیا ہوں KMC ورکشاپ، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سید ذوالفقار شاہ جو کہ سرجن یونین کے صدر ہیں اور آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین بھی ہے، سندھ کے صوبہ سندھ کے صدر بھی ہے، اور یقینی طور پر ان سے جب بات کریں گے تو آپ کو افسوس ہی ہوگا کیسی بیان۔ یہ میرے سامنے سے ایک شاول جا رہا ہے اور یہ ہوگا سندھ سالڈ ویسٹ، کتنا ادھم مچایا ہوا آپ سن رہے ہو۔ یہ ہماری سرکاری مشینریوں کی حالت ہے، اور جو پیچھے کھڑی ہے نا یہ اربوں روپے کی مشینریاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پہلے ہی اسکریپ کر چکا ہے اور کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا، یہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو دھماکہ کر کے جا رہا ہے، ہماری ایسی تیسی کر کے مٹی پلیت کر کے گیا ہے۔ لیکن بہرحال آپ آتے اصل موضوع پہ، آپ لوگوں کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ جو سرکاری ملازم نوکری کر رہے ہیں 2 سال 3 سال 6 مہینے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی تو مٹی پلیت ہونے جا رہی ہے۔ شاہ صاحب قانون پہ قانون بن رہے ہیں، کل آپ ریٹائر ہو جائیں گے 1 سال بعد 2 سال بعد آپ کو پینشن ملے گی۔ جو آپ امید لگا کے بیٹھے ہو گے جی میں تو ریٹائر ہوں گا تو میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہاتھ میرا یوں رہے گا اس لیے کہ میرے تو 1 لاکھ روپے پینشن ملے گی۔ پینشن ملے کی کوئی اثر ہے یا گئی کہانی مک گئی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तो इल्म में है कि बल्दियाती इदारों की तो वैसे पेंशन का बहुत बुरा हाल था पूरे सूबे में। किस्तों में उन्हें पैसे मिल रहे थे, पेंशन भी किस्तों में मिल रही थी। ये अजीब उसने इत्तफाक। अब सिंध गवर्नमेंट ने वफाक की तर्ज पर DRA तो नहीं दिया, उनको ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं दे रहे, उसके लिए कानून साजी नहीं कर रहे। लेकिन एक काम में बड़ी ज़बरदस्त छलांग लगाई है, वो ये लगाई है कि वफाक ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। उन्होंने दोबारा 63.5% पेंशन की कैलकुलेशन कर दी, लेकिन सूबाई हुकूमत ने यहाँ ऐसा किया है कि 63.5 को ख़त्म करके 15% कर ली। आप ये समझ लें कि जिसे रिटायरमेंट के बाद 80,000 पेंशन मिलनी थी, अब वो 22,000 पे आ जाएगा। तो क्या गुजारा करेगा? एक तो उसे मिलेगी 8 से 10 साल में, दूसरा अगर वो मिलेगी भी तो वो 22,000 रुपये मिलेगी। जो उसने बजट बनाया हुआ, जो मामलात हैं, वो तो गया बेचारा। अब एक नोटिफिकेशन परसों की तारीख में फिर आया है, उसमें ये आया है कि 2024 में के बाद जो भी लोग भर्ती होंगे अब उनके लिए ये खुशखबरी दी गई है कि वो अब अपनी पेंशन अपनी कटौती से लेंगे, यानी कि उन्हें अभी अपने 10% पेंशन से अपनी तनख्वाह से काटेंगे। फिर जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें सिर्फ 25% उसका हिस्सा मिलेगा, 75% गवर्नमेंट रख लेगी और वो उसको गाय बगाए अपने तरीके से देंगे। लिहाजा अब आप समझ लें, जैसा कि अभी आपने ये कहा है कि अगर कोई वालिद ये समझ रहा है कि वो अपने बच्चे को सरकारी मुलाजिम बना ले, चाहे पुलिस में या किसी भी महकमे में, अब उसका हाल बुरा ये होगा कि जब एक तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी कटौती करानी है। इससे पहले ये होता था कि पेंशन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट और इदारा ना देता था ना लेता रहा, लेकिन वो सैलरी का एक हिस्सा होता था, तो एक हैंडसम अमाउंट जो है बजट में रखी जाती थी। लेकिन अब बजट में हुकूमत कुछ नहीं रखेगी, आपका पैसा कटौती होगा। एक जो है उसमें टीम बनेगी, वो टीम उसको लुक आफ्टर करेगी, मुनाफा होगा या जो कुछ भी होगा वो उसका है। लेकिन आपको रिटायरमेंट के वक्त 25% मिलेगा और फिर आप जो है बाकी ताड़ियाँ बजाते रहेंगे कि आप मुझे क्या हो गया इससे। अब आप हमारा हाल वो EOBI वाली तरफ हो रहा है, जैसे उन्हें अभी तक जो है ना 10,000 से ऊपर पेंशन नहीं मिल रही, चाहे वो बैंक से रिटायर हुआ है, चाहे वो कहीं से भी हुआ है, तो उससे बुढ़ापा अलाउंस। मुझे आप ये बता दें कि बूढ़े आदमी को तो दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ये जिसको बुढ़ापा अलाउंस का ये नाम दे रहे हैं, इस बुढ़ापा अलाउंस में तो उन्हें क्या मिलेगा? 10,000 रुपये में मुझे बताएं क्या हुआ? अभी 11.5 उनका कर दिया, लेकिन वो भी अभी तक नहीं दिया। लिहाजा अब यहाँ मामलात ये हैं कि पेंशन के जो मामलात हैं वो बिल्कुल जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। अब इसलिए जहाँ भी जो मामलात हैं, अब आप ये समझ लें कि इब्तदा KMC ने की थी और इस वक्त जो है वफाक को और सूबे को KMC का जो है ना वो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने ऐसा लाए अमल रखा था कि लोग पेंशन को भूले हुए थे, ग्रेजुएटी को भूले हुए थे। अब वो उन्होंने हुआ। फिर दूसरा ये था कि 20 तारीख को कंटेम्प्ट लगी हुई थी हमारी। अब बारिश की वजह से अदालतें बंद हो गई, तो वो 20 तारीख की कंटेम्प्ट चली गई आगे, क्योंकि KMC ने जो बुकों का इजरा था वो भी बंद इसलिए कर दिया था कि 20 तारीख को देखें कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, हम जब बुकें देंगे। अब आप ये देखें कि अभी तक 118 के करीब बुकें जारी हो गई हैं। वो लोग बड़े खुश थे कि हमारे बिल पास हो गए, हमें बुक है और उस पर जो डेट दी हुई है वो ये दी है कि 1/8/2025 से आपको पेंशन मिलेगी। नहीं मिली उनको, अब 1/9 से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक कोर्ट इनको डायरेक्शन नहीं देगा। KMC ने एक जिद पकड़ी है कि हमें कोर्ट के आर्डर के तहत जो ये पैसे देंगे तो हम देंगे, क्योंकि जब से TMCs बनी है तो अब उन्हें KMC को जो डिडक्शन मिल रही है 39,97,00,000 रुपये, वो KMC ने ये जस्टिफाई किया कि हम इन लोगों को सबको पेंशन दे रहे हैं, लिहाजा वो अब वाजिबात में नहीं आएगा। अब जो आएगा वो आएगा उसमें कि जो गवर्नमेंट हमें देगी तो हम TMC वालों को देंगे, वरना हम नहीं देंगे। अब इसकी वजह से ये है कि वो देखें जो लोग जो 2,000 लोग थे, यानी कि अगर हम फिगर पे जाएं तो 1895 के करीब लोग हैं, लेकिन वो 2,000 से ऊपर हैं, क्योंकि कई टाउन हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक केस सबमिट नहीं किया, जिसमें मोड़ो मीर बैर भी है और लियारी भी है, क्योंकि यहाँ पर जो MC है ये इतना अपने आप को खींचा तानी कर रहे हैं कि ये केसेस जो पुराने मरे हुए भी हैं उनके केसेस को भी नहीं भेज रहे। अब अगर ये 2023 अक्टूबर वाले की बात करेंगे तो ये बातें तो अलग हैं, आपसे ज़्यादा इसको बेहतर नहीं। देखें, मैं सबसे पहले तो ये है कि सारे पेंशनर की तरफ से जो हमारे 24,500 पहले के पेंशनर हैं और ये तकरीबन 2,000 ये भी हैं, उनकी तरफ से आप यकीन माने कि ये मुँह की तारीफ या उसकी नहीं है। उन्होंने कहा है जितनी हमारी जंग अगर जुल्फ़िकार शाह ने लड़ी है तो उसके मुताबिक, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही अज़ीज़ आरिफ ने भी लड़ी है कि आज हम
इस काबिल हैं कि कम से कम हमारी सुनवाई है, हमारी कुछ केसेस आगे पीछे हो रहे हैं। लिहाजा अब जो मामला ऐसा है कि अब हमारा रोना गाना जो है ना, अब सिंध गवर्नमेंट ने ये जो काम किए हैं, तो इसके बाद तमाम सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें थी, उनके 2 अलायंसेस थे। सर वो क्या हुआ, इत्याद बनते हैं, चूरन बिकता है, कुछ भी नहीं हुआ, आगे वो मुज़ाकरात होते हैं, कामयाब हो गए, फिर खामोश कहाँ खड़े हुए हम। देखें, वो अफसोसनाक अमल यही है, इस दफ़ा अलायंसों के दोनों अलायंसों में यही बात मुलाजमीन ने उठाई। उन्होंने कहा यार हम 30-30, 32-32 इदारों के, महकमों के और हज़ारों की तादाद में हम आते हैं, डंडे भी खाते हैं, आंसू गैस, एक्सपायर शेलिंग भी हम पे होती है, सब कुछ होता है। आखिर में हमें क्या होता है, ये कमेटी बनी है, वो कमेटी नशिस्तन बर्खास्तन है। उल्टा क्या हो रहा है कि अब जो है बगैर बताए नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं ताकि ये लोग और आएँ। अब 25 तारीख को तमाम तंजीमों ने एक तालाबंदी की बात की है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी इदारों, रेवन्यू के ऑफिसेस, इनके लिए तालाबंदी की भी बात की है और रैली भी हैदराबाद में निकाली जा रही है। अब यह है कि एक देखें लाएअमल अब तमाम गवर्नमेंट इदारों के एसोसिएशन और यूनियंस ने एक लाएअमल ये किया है कि पहले वो पूरे सूबे में कन्वेंशन करेंगे। सितंबर के आखिर में वो कन्वेंशन जितने होंगे तमाम लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा, तो इंशाअल्लाह पूरा सूबा जो है, आप ये समझ लें कि पूरा सूबा CM हाउस पे कब्ज़े के लिए अब तैयार है। मुलाजमीन, अब वज़ीर आला वहाँ नहीं बैठेगा। जब ये कन्वेंशन मुकम्मल हो जाएंगे तो जब तक अगर ये मसाले हल नहीं होंगे तो CM हाउस में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सरकारी मुलाजिम बैठे हुए होंगे, वज़ीर आला वहाँ नहीं बैठेगा। बड़ी खबर आ गई है मेरा भाई, वज़ीर आला से मुराद अली शाह साहब, तुम्हारा लग रहा है काम होने वाला है। यहाँ यूनियन खड़ा कर दिए, पूरे सिंध के मुलाजमीन आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं भाई साहब, याद रखना एक टाउन में 11 ग्रेड के या कुछ ग्रेड की अपॉइंटमेंट यानी जाली भर्ती का प्रोग्राम बना रहे हैं। टेंडर खुला है 11 ग्रेड का 14 लाख रुपए। जाना नहीं, कान पकड़ लो, कान तोबा तोबा कर लो, इसलिए कि बाप प्लाट बेचेगा, बीवी का जेवर बेचेगा, तुम्हें भर्ती कराएगा, काका नहीं मिल रहा। सुन लिया ना, अभी जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी पेंशन पूरी नहीं मिलेगी। अगर 80,000 है तो 22,000 मिलेगी। दौर फुटे हैं मुँह पर रिटायर मुलाजमीन और हाजिर सर्विस मुलाजमीन। चले सर, ये तो हो गया, सब मर गए, भूखे मर गए, हाय हाय, अबे सही मरे हो तुम लोग, पाओ घुसो बद्याती इदारों में। सर ये बताएं, डिस्पेरिटी अलाउंस बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, मेरे मुंह से तो निकलता ही नहीं है। ये मिल जाता तो थोड़ा मुलाजमीन को आसरा हो जाता। यहाँ तो पेंशन का आसरा नहीं है, वो कटौती हो गई, ये मिलेगा। देखिए, डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए हमारी ये जदोजहद 3 चीज़ों के लिए है कि पेंशन इस्लाहत ख़त्म करके जो पहला निज़ाम है उसी को जारी रखा जाए। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ताकि चूँकि पंजाब में भी अभी होने वाला है, बाकी 2 सूबों ने दे दिया, वफाक ने दे दिया। अब सूबे के लिए हमारी कोशिश यही है कि आप कह रहे हैं कि आप ज़्यादा देते हैं, तो हमने कहा जी बिठा लें, माहिरीन हमारे साथ बिठा लें, हम कैलकुलेशन करते हैं जितना रिडक्शन हमारी डिस्पैरिटी है वो हमारे सूबे का एक हिस्सा है। अब आपने 3 दफ़ा नहीं दिया और वो 70% बनता है। अगर वो है, अगर आप हमें 30% भी नहीं दे रहे तो हम पूरा 70% लेंगे। दूसरी बात ये कि हुकूमत सिंध ने फॉर्मूला कहा था मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि 50% से कम जो है वो तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा, लेकिन होता ये है कि यहाँ वहाँ पर जो है वफाक ने 10% किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया, 10 और 2 12 कर दिया, और वहाँ 7% हुए, इन्होंने 8% कर दिया। हम ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का अपना मुस्तकबिल है और उन पे लोग यकीन कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे यकीन कर रहे हैं और कल ही सदर पाकिस्तान ने NFC में एक अच्छा अमल हुआ है कि NFC अवार्ड के लिए नई कमेटी बना दी गई है। तो अब हमें भी उम्मीद है कि 2010 से हमारी PFC नहीं हुआ। देखिए, हमारे सूबे के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको जो कुछ भी आज तक मिला ये हड़तालों, हंगामों या धरनों से मिला है, तो ये 2-3 दफ़ा जो इजाफा हुआ है। वरना अब OZT अगर हकीकी तौर पे देखी जाए तो हमारे सूबे की जो आमदनी है या हमारी जो एरिया नीड है, आप ये देख लें कि इस वक्त नालों से लेकर तमाम निज़ाम बैठ गया। मुझे अफसोस इस बात का है कि अब मेयर साहब भी कह रहे हैं कि सिर्फ 30% हमारे यहाँ पर 30 मिलीमीटर की गुंजाइश है। तो मेरे भाई आप ये देखें कि 78 साल में 30 मिलीमीटर तो क्या है, आपको हर साल 200-300 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन असल बात है कब्ज़ा माफी, असल बात है कोताही की। आप ये देखें कि नालों के अगर 30 मिलीमीटर है तो आप उसको मज़ीद गहरा करके आपको 50 किलोमीटर कर सकते हैं, बड़ी लाइनें आप डाल सकते हैं। अगर समुंदर पानी रिवर्स करता है तो आप वहाँ पर समुंदर के करीब
3 से 4 प्लांट लगा कर जो है ना उसी पानी को वापस ये शाह साहब, ये पूरा एक कहानी सुनाऊंगा, आप भी उछल जाओगे। ये करेंगे नहीं। ये हमारे बरसाती नाले हैं, पैदागिरी के घर। यहाँ सुन लो, पैदागिरी के घर है, इस पर पूरी फिल्म दिखाऊंगा इंशाल्लाह, पीर मंगल को दिखा दूंगा। लेकिन बाहर अच्छा यार, शाह साहब छोड़ो ना यार, वो अच्छी खबर तो तुम्हारे पास भी नहीं होगी, हमारे पास भी होगी। पेट में तुम्हारे भी दर्द होता है, सर में तुम्हारे भी फोड़ा है। आए रिटायर्ड मुलाजमीन, पेंशनर, उनके पीछे लग जाते हो यार। मुझे एक बात बताओ, ये बारिश हुई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ किधर था भाई? किधर था? देखें, इन्होंने एक तो क्या काम किया है कि आपके सामने कोई सरकारी मुलाजिम तो अब रखा नहीं है। अब वो इदारों ने, टीएमसी ने फटीक पार्टियाँ एक रखी हुई थी, उन फटीक पार्टियों ने अपने तजर्बे से जो कर सकते थे किया। आपके पीछे यहाँ पर 85 मशीनरी कारामत हालत में खड़ी है। अगर ये 85% मशीनरी से काम लिया जाता, ये आप देख लें कि ये लोडर सामने खड़ा हुआ है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता। लेकिन आपने जो है वो मुनासिब ही नहीं समझा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मुनासिब नहीं समझा, उसकी मशीनरी इस काबिल नहीं थी, ना ही उसके स्वीपर इतने का वो थे। ये तो बड़ा झाड़ू लेके सिर्फ जो है झाड़ पहुँच और मेजरमेंट करने के लिए ये कचरे को, ये कचरा जितना फैला ख़त्म होता है इसको नापते हैं। आप ये देखें, मैं पीछे आपको बात बताऊं तो केएमसी स्टाफ क्वार्टर से इन्होंने क्या किया, डब्बे ही उठा लिए। बोला जी आप अपनी मदद, अब सॉलिड वेस्ट की सूरत हाल ये है कि आप अपनी मदद आपके तहत वहाँ डब्बे लगाएं। अब वहाँ जगह जगह गली गली में सबसे पहले लोग आके ये कह रहे हैं, यार आप केएमसी वाले लोग हो, आप टीएमसी वाले लोग हो, जो आदमी अपने घर को साफ़ नहीं रख सकता वो दूसरे की सफाई क्या करेगा? नंबर 1। नंबर 2 बात ये देख लें कि आप ये केएमसी हेड ऑफिस का हाल आपने बारिश वाले दिन देखा, और ये हमारा फायर हेडक्वार्टर है। ये मेरी यहाँ उम्र गुजर गई, मैं 55-56 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि हमेशा यहाँ पानी और बारिश के भी 10 दिन तक रहता है। तो खुद चला जाए तो चला जाए, वरना यहाँ पे कोई सहमत नहीं करता। जबकि ये फायर हेडक्वार्टर है, सामने उर्दू यूनिवर्सिटी है, बाबा उर्दू का मज़ार है, ऐसे ही SIUT है यहाँ पर, इसी सिविल अस्पताल है इस रोड पर, इसी पे फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसी पे चिल्ड्रन, एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन कार्डियो अस्पताल है। लेकिन पानी की सूरत हाल देख लें कि अभी तक वहाँ पानी पड़ा हुआ है, लेकिन कोई साफ़ करने वाला नहीं है। बल्दियाती इदारे खुद मज़ार बन चुके हैं भाई। आओ फातिया पढ़ो, निकल लो, लेकिन आसरे में नहीं रहना। छल रहा पुलाव मिलेगा यहाँ पे, ये तो सारे भूखे ही नंगे हैं, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, दे के ही जाना पड़ेगा। सही है, जुल्फ़िकार शाह से आज आपको भयानक खबरें सुनवा दी है, क्योंकि तुम लोग मेरे पीछे काय करते हो रात को। पेंशन का कहो, पेंशन, अरे पैसे नहीं आएंगे, पैसे अब पैसे गए। अभी तो जो काम कर रहे हो ना, बताया गए, पेंशन भी आधी से आधी हो गई है। करो नौकरी, 11 ग्रेड की नौकरी के लिए 14 लाख इनको पैदागिरों को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बरसाती नाले शहर के पैदागिरी का एक सिस्टम है, पूरी फिल्म दिखाऊंगा। लेकिन सही है, जुल्फ़िकार शाह से आज मिलाने का मकसद ये था कि जो भयानक खबरें हैं ना, आप अपने कानों से सुन लो। मैं बोलूँगा तो बोलोगे भोंक रहा है, पता नहीं बोल रहा है। अब इन्होंने सुना दिया, यकीन आ गया। अब पेंशन तुम्हारी कब मिलती है हमें नहीं मालूम, लड़ता है ये भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा। आधा बस। चेयरमैन मंगूपीर टाउन नवाज अली बरोही का मून सिटी का दौरा, बारिश के पानी जमा होने की शिकायत पर फौरी पहुंचकर निकासी आप का काम शुरू करवाया। चेयरमैन नवाज अली बरोही का कहना था कि हमें जहां भी बारिश का पानी जमा होने की इतलात मिल रही हैं वहां काम करवा रहे हैं। ये सिलसिला इमरजेंसी तौर पर जारी है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही को इतला मिली कि मून सिटी में भी बरसाती पानी खड़ा है और उसकी वजह से वहां के मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही गुज़िश्ता रात वहां पहुंचे अपनी मशीनरियों और अफरादी क़ुव्वत के साथ। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को जहाँ हिदायत दे रहे थे, वहीं खुद बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बना रहे थे। रात भर उन्होंने मुख्तलिफ डी वाटरिंग पम्प, बाउज़र और तमाम अफरादी क़ुव्वत का भरपूर इस्तेमाल करके मून सिटी के लोगों को बरसाती पानी का जो जमा था उससे निजात दिलाने के लिए खुद कामों की मॉनिटरिंग करते रहे, बल्कि कामों में हिस्सा लेते रहे। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा था कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम में जो फॉल्ट आया था, बारिशों से पहले जो बड़ी लाइनें धंस गई थी, उसकी बुनियाद पर मंगोपीर टाउन में मिसहैप हुआ है। वरना 2 साल हमने बड़ी खुशउस्लूबी से गुजारे हैं, और लेकिन इस दफ़ा तेज़ बारिशें भी यकीनी तौर पर पूरे कराची को अपनी लपेट में ली हुई थी। लेकिन हमारे ड्रेनेज सिस्टम के बैठने के बायस हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब ने हर मुमकिन ताउन का हमें यकीन दिलाया है, जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ साथ कमिश्नर कराची हसन नकवी भी मंगोपीर टाउन के लोगों को जिस मुसीबत में वो हैं उनके अजाले के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मून सिटी से बारिश के पानी की निकासी के लिए रात भर जहाँ चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही अपने अफसरान और अमले के साथ मौजूद थे, वहीं पर
आल सुबह भी ये काम जारी रहा। यकीनी तौर पर दोपहर 11 बजे करीब जाकर मून सिटी को पानी से पाक किया गया, यानी कि बारिश के पानी की निकासी को तकरीबन 99% निकाल दिया गया था, जिसके बाद यकीनी तौर पर कुछ मुतमईन दिखाई दे रहे थे कि यकीनी तौर पर उनके अमले ने रात भर और 11 बजे तक दिन में काम करके यकीनी तौर पर एहलिया ने मून सिटी को एक सहूलत फराम कर दी है जहां बरसाती पानी खड़ा था, जिसकी वजह से खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम इस मौके पर चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने उम्मीद जाहिर की कि मून सिटी वाले भी यानी प्राइवेट सोसाइटी वाले भी देख लें कि मंगो पीर की इंतज़ामिया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अमली तौर पर काम कर रही है और पीएस पार्टी के जियाले भी हर मुमकिन तरीके से लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए मैदान अमल में मौजूद है। इस मौके पर चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हम खड़े हैं मून सिटी अल्लामा टाउन टाउन में, और ये जो एक देर का मसला था, सामने जो है पानी या बिल्कुल ओवर था यहाँ पे। ये रात भर जो है पानी की यहाँ से हमने निकासी की है, और उसके बराबर में जो है ये मून सिटी है जो कि तकरीबन घरों में 4-4 फुट पानी ठहरा हुआ था। वो पानी को जो है उसकी भी निकासी करके सेवरेज लाइन को बाहर करा के अब हम फारग हुए हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो जिससे आप खास तौर पर आपको और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर साहब को बताना चाहूँगा, जो यहाँ अफेक्टेड एरिया से कमिश्नर साहब ने विजिट किया था, वो क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी हम फिर तैयारी कर रहे हैं सैफल मरी बोर्ड जहाँ भी कुछ अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसको भी हम क्लियर करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने यकीनी तौर पर प्राइवेट सोसाइटी को भी नहीं छोड़ा, इसलिए कि वहाँ पर भी इंसानियत का एहतराम किया और वहाँ पर भी रात भर वो खुद अपने अमले, अफसरान और तमाम मशीनरियों के हमरा मौजूद रहे और मून सिटी के खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों को बरसाती पानी से निजात दिलवाई, जिससे यकीनी तौर पर आज वो मुतमईन भी होंगे। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। लियारी टाउन का अमला 5वें रोज़ भी बारिश से सड़कों और गलियों में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए सरगर्म रहा। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद एंडी खान ने मुख्तलिफ यूसेज में जारी कामों का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद एंडी खान ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि लियारी टाउन में जहां जहां बरसाती पानी मौजूद है उसकी बर वक्त निकासी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद एंडी खान ने लियारी टाउन के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में अहम शहरों का दौरा किया और इनके हमरा यूसी चेयरमैन, उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद हारून, चेयरमैन फहीम बिलोच, चेयरमैन सिद्दीक बिलोच, लियारी, मिर्ज़ा आदम खान रोड, ली मार्केट, चाकीवाड़ा समेत शहरों से निकासी ऐप के कामों की खुद निगरानी करते रहे और अफसरान और मुलाजमीन को हिदायतें भी जारी करते दिखाई दे रहे थे। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान का कहना था कि लियारी टाउन में बेहतर सब्सिडी सहूलतों की फराहमी को हम यकीनी बनाते चले आ रहे हैं और बरसाती पानी की निकासी हमारी तरजीहात में शामिल है। तमाम वसाइल को बरवेकार लाया जा रहा है, डी वाटरिंग पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद जो अगर हमें इजाज़त मिली जो हमारे वसाइल है उसमें रहते हुए, और लेकिन कोशिश करेंगे मज़ीद डी वाटरिंग पंप का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द से निजात मिले। म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान का कहना था कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 28 से 31 अगस्त तक मजीद तेज़ बारिश मुतवक्को है, जिसके लिए हमने अमली तौर पर तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। अगर 4 दिन पहले वाली बारिश होती है तो यकीनी तौर पर हमें अपने वसाइल से ज़्यादा बढ़ के काम करना होगा, इसीलिए अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत जारी कर दी गई है। छुट्टियाँ हमने पहले ही मनसूख कर दी है। उसके साथ साथ अब तेज़ बारिश अगर होती है इन 4 दिनों में आने वाले, तो हम कोशिश करेंगे कि हर हाल में बरसाती पानी की निकासी को शाहराओं से बर वक्त यकीनी बनाया जाए, जबकि मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप को क़ब्ल वक्ती लगा दिया जाएगा ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। महकमा बल्दिया उज़्मा कराची महकमा स्टेट की हैरान कुन रिकवरी मुहिम नामुकम्मल चालान मुतनाज़ हो गया, दुकानदार भी परेशान हो गए। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची में टैक्स रिकवरी के लिए यकीनन अमला मसरूफ़ अमल रहता है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिस पर यकीनी तौर पर तफ्तीश होती है, यानी तशवीश होती है कि ये क्या काम कर रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने जो बिल दे रहे हैं उसमें भी हैकी पैकी है। मदीना फर्नीचर मार्केट बिलमुकाबिल मक्की मस्जिद गार्डन रोड पर जो फर्नीचर मार्केट है उसको चालान इशू किए गए। बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से जारी चालान में वाज़ेह तौर पर स्टैम्प लगी हुई है 25 अगस्त 2025, जबकि पेन से ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये रिकवरी जो हो रही है वो जुलाई 2023 से 2024 जुलाई के दरमियान की है,
جی ہاں، ذرا نوٹ فرمائیے گا، جولائی 2023 سے 2024 کی ہے اور بل دیا جا رہا ہے 25 اگست 2025 کو. جو اوپر جو چیز ہے اس کو بلیک کیا ہوا ہے کہ کس نے کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پر جو کرنٹ لکھا ہوا ہے وہ یعنی اماؤنٹ ہے وہ 64,860 روپے ہے. جی ہاں، اور پھر آگے ٹوٹل ڈیوز وہ بھی واضح طور پر جو سلپ پہ لکھا ہوا ہے وہ 64,860 ہے، لیکن اس کو پھر کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں 2,02,078 روپے بنا دیا ہے، کیا کیا ہے، لیکن نیچے جو ہے بلدیہ عثمہ کراچی اور پیوا کی اسٹیمپ لگا کے انیشیل بھی کر دیا ہے. یعنی انہوں نے بتا دیا ہے کہ 64,860 نہیں ہے بلکہ یہ لاکھوں روپے میں بل ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ عجیب صورتحال ہے کہ یہ بینک کی سلپ ہے، لیکن اس کے اوپر جی ہاں اس کے اوپر آپ دیکھیں گے انسپیکٹر کی دستخط ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بلدیہ عثمہ کراچی اور پیوا کی، کیشیئر کی نہیں ہے یعنی اکاؤنٹ آفیسر کی نہیں ہے. نیچے بینک مینیجر کی سائن ہے، جو وہ ریسیو ہوگی تو یقیناً ہوگی، لیکن اکاؤنٹ آفیسر یا کیشیئر کی سائن اس پر نہیں ہے جو دکانداروں کو یہ بل یعنی کہ ریکوری کے لیے دیے جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک تو آپ بل دے رہے ہیں 25 اگست 2025 کو اور ریکوری کر رہے ہیں جولائی 2024 سے جون 2024 کی یعنی کہ 24 کی، اور 25 اگست چل رہا ہے اور اس میں بھی آپ 64,860 روپے کے بجائے یہاں پر بڑا بل دے رہے ہیں، نیچے انیشیل اور گول اسٹیمپ بھی لگا رہے ہیں. یہ کون سا گورکھ دھندا ہے، یہ کون سا بل ہے؟ یقینی طور پر کاروباری لوگ بھی پریشان ہوں گے، اس لیے کہ ٹیکس ریکوری ویسے ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ دکانداروں سے ٹیکس لینے جائیں گے اور اگر اس طرح کا کام ہوگا تو لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے. یقینی طور پر اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سا بل ہے، کیا ان کو اب دوبارہ بل دیا جائے گا، کمپیوٹرائز بل دیا جائے گا، ڈیٹ جو ریکوری کی ہے وہ دیکھی جائے گی اور اس کے بعد کیا اکاؤنٹ آفیسر سائن کرے گا یا انسپیکٹر کی سائن سے ہی ریکوری مینولی ہو جائے گی، بینک میں ہوگی یا مینولی ہو جائے گی. یہ تو جانے ہمارے انکل میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی کہ یہ کیا ماجرا ہے. عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کا بڑا کارنامہ مٹی کو سونا بنا دیا. چیئرمین عاطف علی خان کی ہدایت پر پرانے روٹ کی تعمیر میں نکلنے والے ملبے کو ڈمپنگ پوائنٹ پر سنبھال کر رکھ دیا گیا جو کیچڑ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس طرح پھینکے جانے والے ملبے کو استعمال میں لا کر کروڑوں روپے کے کام کا معیار بہتر بنایا جا سکتا ہے. گڑھوں کو بھرنے کے لیے کروڑوں روپے کا خریدا جاتا تھا. چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان کا بڑا کارنامہ. گزشتہ دنوں ٹاؤن کے تحت روڈز کی تعمیر کے دوران جو پرانی سڑکوں کا ملبہ نکالا اسے نہایت دور اندیشی سے چیئرمین عاطف علی خان نے ایک ڈمپنگ پوائنٹ پر محفوظ کر لیا. یہ ملبہ فلنگ کے لیے بہترین ہوتا ہے اور کیچڑ کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں اس وقت وسیع پیمانے پر اس کے ذریعے بارش سے بننے والے گڑھوں کو بھرا جا رہا ہے. یہی کام کرنے کے لیے سابقہ ادوار میں کروڑوں روپے کا ایگریمنٹ خریدا جاتا تھا، لیکن اس بار جماعت اسلامی کی ٹاؤن انتظامیہ نے عوام کے پیسے کی حفاظت کی اور اسے بے جا صرف ہونے سے بچایا. پاکستان میں لانے والے ہاتھیوں کی کہانی جن سے چڑیا گھر کی رونق تھی. چڑیا گھر سے سفاری پارک لانے والے 2 ہاتھی عوام کی توجہ کا باعث بنے ہوئے ہیں. ڈائریکٹر امجد زیدی کے مطابق ان ہاتھیوں کی صحت کا غیر ملکی ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں علاج کیا جا رہا ہے. مزید احوال جانیں گے عزیز عارف کی اس خصوصی رپورٹ میں. پاکستان میں 4 ہاتھی لائے گئے تھے 2009 میں. 2 کراچی چڑیا گھر 2 سفاری پارک میں رکھے گئے تھے، لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے یا نظریں لگ گئیں، اس میں سے 2 ہتھیاں ہماری دنیا سے رخصت ہوئیں. یہ ایک افسوسناک خبر تھی شہر قائد سے، لیکن میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب، میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی نے یقینی طور پر پھر تہیہ کر لیا کہ وہ ان ہتھیوں کو جو 2 بچ گئی ہیں یعنی کہ ملکہ اور نور جہاں ان کی دیکھ بھال کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سینئر ڈائریکٹر سلیم تاجی کو یا ڈائریکٹر سفاری پارک
पार्क अमजद जैदी हमारे जो हाथियों को देखभाल करते हैं, महावतें और उसके साथ साथ दीगर अमला जो नीचे वाला है, उन्होंने जब उसकी बेहतरीन देखभाल करना शुरू कर दी। यही नहीं, हम आपको बताएं कि आप ये हाथी आज दोनों मलका और नूरजहां आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बिल्कुल ऐसे चहलकदमी करते हैं। बल्कि आप ये देख लें, आज कराची में गर्म मौसम था तो किस तरह पानी के अंदर ये तैर रहे हैं, बल्कि मुजाहरा भी कर रहे हैं, अपने फ़न का मुजाहरा। ये कुदरती खुशी है और यही बात है कि मासूम बच्चे और ख़वातीन इसको देखना चाहते हैं। वो देखे ना देखे, अजीज़ आरिफ देखना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी तो इब्तिदाई दिन से इनसे दोस्ती है। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा ने ये काम नहीं किया। अब हम आपको खबर देते हैं कि उन्होंने तहैया कर रखा है कि इन 2 हाथी जो पाकिस्तान के लिए एक नायाब तोहफ़ा है और खुसूसन कराची, सिंध और उसके साथ साथ सफारी पार्क के लिए, ख़वातीन बच्चों के लिए, उसके लिए इन्होंने एक डॉक्टर अपॉइंट कर दिया है जो कि मुनासिब देखभाल इनकी जारी रखते हैं। 24 घंटे देखभाल होती है, केयर होती है और उसके साथ साथ मेयर कराची ने एक एक दवाई जो इनको ज़रूरत है उसको फौरी तौर पर पूरा करते चले आ रहे हैं, करेंगे नहीं करते चले आ रहे हैं, ताकि इनकी अद्वियात पूरी हो और ये तरोताज़ा रहें। और यकीनी तौर पर इनका इलाज भी चल रहा है। श्रीलंका से भी डॉक्टर की टीम आती है, पाउस वाले भी आते हैं, जी हाँ, वो 4 पाव वाले थे वो भी आते हैं, लेकिन इसकी देखभाल बड़ी एहसन तरीके से की जा रही है क्योंकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। तो हम इस हवाले से डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी क्या बता रहे हैं, सुनिए। आप लोगों के इल्म होगा, बाकायदा मेयर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, तो उसके बाद सिलसिला ऐसा हुआ कि बाकायदा हमारे यहाँ जो डॉक्टर काजिम हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पे रखा गया है, मेयर साहब की अप्रूवल से, डिप्टी मेयर साहब की अप्रूवल से, एमसी साहब की अप्रूवल से। और इसके अलावा फोरपॉस के जो डॉक्टर्स हैं वो विज़िट करते हैं और श्रीलंका से ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर साहब ने मेयर साहब ने डॉक्टर्स वहाँ से बुलवाए और पिछले 3 महीने से उनका इलाज हो रहा है। 4 महीने में उनका इलाज कंप्लीट हो जाएगा और वो माशाल्लाह इस टाइम जो है वो हंस खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब जो टेस्ट आएंगे उनकी रिपोर्ट जो हैं वो सब क्लियर आएंगी। ये थे अमजद जैदी डायरेक्टर सफारी और यकीनी तौर पर ये हों इनके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर काजिम है या नीचे महावत है या उसके साथ साथ जोलॉजिस्ट है या दीगर अमला है जो यहाँ सफाई सुथराई करता है, उन्होंने यकीनी तौर पर चिड़िया घर के बाद जब सफारी पार्क में हाथी मुंतकिल हुए तो 2 रह गए, इनकी मुनासिब देखभाल करके कराची और पाकिस्तान का ये जो तोहफ़ा है, नायाब चीज़ है, 2 हाथी रह गए हैं हमारे पास पूरे पाकिस्तान में, वो सफारी पार्क में है और यकीनी तौर पर किसी नेमत से कम नहीं है। यही वजह इनकी आज मुनासिब देखभाल की जा रही है। सफारी पार्क में 2 हाथी हैं और ये पाकिस्तान में 2 हाथी हैं, लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अफजल जैदी, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, सीनियर डायरेक्टर सलीम ताजिक हो या डायरेक्टर सफारी अमजद जैदी और यहाँ का अमला, जिस तरह इन हाथियों की मधुबाला और नूरजहां और मलका की देखभाल कर रहे हैं मेडिसन के हवाले से, यकीनन ये कराची वालों के लिए एक तोहफा है और यकीनी तौर पर ये सस्ती तफरी फराहम करते हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। यासीनाबाद में सीवरेज लाइन चौक होने पर सड़क पर आने वाला पानी साफ करवा दिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया। यासीनाबाद में सीवरेज लाइन चौक होने की वजह से पानी सड़कों पर आ गया था। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह के फौरी एक्शन से लाइन को क्लियर करवा लिया गया और सड़क से पानी को रिमूव कर दिया गया। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास और यूसी चेयरमैन भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि हालांकि वाटर एंड सीवरेज का काम हमारा नहीं है, मगर हमें आवाम की तकलीफ का एहसास है और हमारा मकसद आवाम को परेशानी से निजात दिलाना है। बल्दिया टाउन की जानिब से बारिशों के दौरान पानी की निकासी का काम का सिलसिला जारी रहा। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी रात के वक्त किसी भी ग्राउंड पर मौजूद रहकर हब रिवर रोड और मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। बल्दिया टाउन में निकासी आब का ऑपरेशन जारी रहा। कराची में शदीद बारिशों के तीसरे रोज़ भी बल्दिया टाउन में निकासी आब का काम जारी है। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी रात के वक्त भी ग्राउंड पर मौजूद रहकर हब रिवर रोड और मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया टाउन के अहम शाहराएँ जैसे हब रिवर रोड, 5P रोड, 13D रोड, रूपी मोड़, जंगल स्कूल, शाहरा वकास और मवाचा रोड क्लियर कर दी गई है।
चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान का यूसी मवाज कोर्ट का दौरा बारिश के पानी की निकासी के कामों का मुआयना किया। चेयरमैन हिमायू मोहम्मद खान का कहना था कि आवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान ने कहा है कि बारिश के पानी की निकासी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इसी लिए हम तमाम वसाइल को परवेकार ला रहे हैं। चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान ने मवाज कोर्ट यूसी का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा यूसी के चेयरमैन मूसा मैंगल, वाइस चेयरमैन उस्मान पड़ियार, वाइस चेयरमैन हस्साम और इलाके के मौजूदीन और लोगों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर पहुँच गई थी। इस मौके पर चेयरमैन हिमायू मोहम्मद खान ने मुताल्लिक़ अफसरान को नालों की सफाई सुथराई के साथ साथ गलियों की सफाई के अहकाम जारी किए और कहा कि अंदरूनी गलियों में जो खड़ा हुआ पानी है, जो बरसाती पानी है, उसकी फौरी निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप का इस्तेमाल किया जाए और कोशिश की जाए कि तमाम गलियों से बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाने के साथ साथ स्प्रे मुहिम को भी लाजमी किया जाए ताकि किसी किस्म के वबाई अमराज यहाँ ना फूट सकें। जबकि खेल के मैदानों का भी नंबर लगाया जाएगा, लेकिन अभी मुतवक्को तेज बारिशों के बाद यकीनी तौर पर खेल के मैदानों को भी बरसाती पानी की निकासी से पाक किया जाएगा। चेयरमैन हिमायू मोहम्मद खान ने फौरी तौर पर अफसरान को हिदायत की कि बरसाती नालों पर कड़ी नजर रखी जाए क्योंकि महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते भी तेज बारिशों की पेशेंगोई कर दी है, जिसकी बुनियाद पर तमाम मामला हरकत में रहे। छुट्टियां हमने पहले ही मनसूख की हुई है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आने वाली तेज बारिशों में भी मारीपुर टाउन के लोगों को तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में शिफ्टों में काम करने के साथ साथ डी वाटरिंग पंप को लाजमी तौर पर तैयार हालत में रखा जाए, जबकि अफरादी क़ुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने हिमायू मोहम्मद खान ने मुख्तलिफ यूसीज़ का दौरा करने के बाद यकीनी तौर पर इस बात की तवक्को ज़ाहिर की कि हमारी टीम जिस तरह मेहनत कर रही है, एहलियान मारीपुर टाउन को निजात दिलाएगी और बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए शाहराहों के लिए अलग टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि लोगों को सफरी सहूलतें मुयस्सर आती रहें। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। गुलबर्ग टाउन में रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी चेयरमैन गुलबर्ग टाउन की जानिब से चेक्स तकसीम किए गए। चेयरमैन नुसरतुल्लाह का कहना था कि इस 1.5 साल के कलील अरसे में जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों ने 11 करोड़ 50 लाख से ज़ायद की रकम अदा की। अब्दुल हमीद सुहाग ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की उम्मीदें लीव इंगेजमेंट और पेंशन से वाबस्ता होती हैं। अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुलबर्ग कामरान सिराज और चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास, म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग, साबका टाउन नाज़िम फारूक नेमतुल्लाह के हमरा एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में रिटायर्ड मुलाजमीन और मरहूमीन मुलाजमीन के वर्सा में 85 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। ये अदायगियाँ उन मुलाजमीन की खिदमात के इतराफ़ और उनके वाजबात की बरवक्त फराहमी मुंतखब बल्दियाती क़यादत के अज़्म का मज़हर है। उनके ख़यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुलबर्ग कामरान सिराज ने चेक्स की तकसीम और नए चेयरमैन सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने 2 साल के कलील अरसे में 13 करोड़ से ज़ायद रकम रिटायर होने वाले मुलाजमीन और लीव इंक्रीजमेंट की मद में अदा कर चुके हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से मिलने वाली तनख्वाहों पर खर्च हो जाता है और हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि डेवलपमेंट फ़ंड में इजाफा किया जाए ताकि तरक्याती कामों में तेज़ी आ सके। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने इस मौके पर कहा कि ईमानदार और मेहनती मुलाजमीन गुलबर्ग टाउन का कीमती असासा है। उनकी तवील खिदमात का तकाजा है कि उनके वाजबात फौरी और मुकम्मल तौर पर अदा किए जाएँ ताकि अपनी रिटायरमेंट के बाद माली मुश्किलात से महफूज रहें। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुलबर्ग टाउन पर तमाम वाजबात अपने ऑन सोर्सेज से अदा कर रहा हूँ। नुसरतुल्लाह ने महकमा फाइनेंस की खिदमात को सराहते हुए ख़ास तौर पर अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद सिद्दीक और बजट ऑफिसर वसीम अहमद का शुक्रिया अदा किया, जिनकी अनथक मेहनत के बायस तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजबात की बरवक्त अदायगी मुमकिन हुई। म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की उम्मीदें लीव इंक्रीजमेंट और पेंशन से वाबस्ता होती हैं। तमाम अफसरान को हिदायत की जाती कि रिटायरमेंट के अमल में तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ मुकम्मल करके वाजबात की अदायगी के अमल को आसान और तेज़ तर बनाया जाए। तकरीब के अख्ताम पर रिटायर्ड मुलाजमीन ने गुलबर्ग टाउन के इंतज़ामिया और चेयरमैन नुसरतुल्लाह का बरवक्त वाजबात अदा करने पर शुक्रिया अदा किया।
टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने बारिशों के दौरान गडाब टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी रखा। उनके हमरा वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोखियो, म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार भी थे। चेयरमैन तारिक अजीज ने मुतल्लिका अमले को हिदायत देते हुए कहा कि मुतासरा रास्तों की बहाली अव्वलीन तरजीह है ताकि आवाम को फौरी रिलीफ मिल सके। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोखियो, म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने बारिशों के तीसरे रोज़ भी गडाब टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा काउंसिल मेंबर मोहम्मद रफ़ीक जोखियो भी मौजूद थे। हालिया बारिशों के सबब थड्डू डैम गडाब टाउन जाने वाला रास्ता मुतासर हुआ, जिसके सबब मकामी आवाम को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने मौके पर रेस्क्यू और मरम्मती काम शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा कि मुतासरा रास्तों की बहाली अव्वलीन तरजीह है ताकि आवाम को रिलीफ मिले। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक गडाब टाउन के अवाम को हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ेंगे। टाउन मेंबरान की बाहमी मुशावरत से मसाइल के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। गडाब टाउन की पूरी मिशनरी फील्ड में मसरूफ़ है। वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोखियो ने कहा कि आवाम को सहूलियात की फराहमी पर गामजन है। बारिशों से मुतासर इलाकों में निकासी आब और मरम्मती काम तेज़ी से जारी है ताकि गडाब टाउन की आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने इस मौके पर कहा कि इंतज़ामिया भरपूर कोशिश कर रही है कि निकासी आब और रास्तों की बहाली जल्द से जल्द मुकम्मल हो। इस मकसद के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की हैं। आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। इस मौके पर चेयरमैन यूसी शाह मुरीद, शाहजहां खास खैली, साबका चेयरमैन यूसी गडाब फरीद अहमद जोखियो और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन अली हसन जोखियो, मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ की जानिब से बारिशों के दौरान पानी की निकासी के लिए काम जारी है। 4300 रोड सिंधी होटल पर पंप लगाकर गटर के पानी की निकासी जारी है। न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ की हिदायत पर गटर लाइन डैमेज होने की वजह से न्यू कराची के 5 सेक्टर्स मुतासर हुए, जिसके लिए 4300 रोड सिंधी होटल पर पंप लगाकर गटर के पानी की निकासी की गई। यूसी सेक्टर 5 के 5J में जमा पानी को क्लियर करवाया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर खालिद शेख और इंस्पेक्टर मामूर ने अपने स्टाफ के हमरा फराइज अंजाम दिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन डिवीज़न में तजावज़ात के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन जारी है। मेन यूनिवर्सिटी रोड और शादमान टाउन के अतराफ कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर और सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC अमार खान की ज़रिए निगरानी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैफिक जैम की शिकायत पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन डिवीज़न में यूनिवर्सिटी गेट ता मौसमियात तक कार्रवाई की गई। रोड और फुटपाथ पर रखा सामान उठाकर स्टोर में जमा किया गया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर आमिर शाह और एडिशनल डायरेक्टर गुलफराज ने स्टाफ के हमरा की। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शादमान टाउन के अतराफ सड़कों पर ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर इलाका पुलिस भी मौजूद थी। कराची में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गुलबर्ग टाउन का इलाका, अजीज़ाबाद ब्लॉक 8, गुलशन, शमीम और यासीनाबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 3 रोज़ गुजरने के बावजूद वाटर कॉरपोरेशन का अमला पानी की निकासी के काम मुकम्मल न कर सका। इलाका मकीनों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिशों ने वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी आया कर दी। कराची के दीगर इलाकों की तरह गुलबर्ग टाउन के इलाके अजीज़ाबाद, गुलशन शमीम और यासीनाबाद में बारिश के बाद पानी की निकासी न होने से पानी सड़कों पर ताहाल जमा है। सेवरेज की लाइनें साफ न होने से पानी की निकासी के कामों में मुश्किलात आ रही हैं। हालात से तंग आए शहरियों ने Metro 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली ने इलाके के मसाइल में इजाफा कर दिया है। जामे मस्जिद यासीनाबाद के सामने पानी जमा होने से नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आप यहाँ पर गाड़ियाँ ला के लोगों को दिखा देते हो, उससे कोई फ़ायदा तो नहीं है। काम तो करके दिखाओ। गटर लाइनें, चौक हैं, कचरे का ढेर लगा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। नमाजियों को परेशानी हो रही है, कोई नमाजी नहीं पढ़ने आ रहा। कुछ शर्म करो यार। पानी कितना हुआ, गटर बंद हुए हैं, बारिश तो ख़त्म हुए हुए भी आज दूसरा दिन है,
कल से बारिश नहीं हुई है, रात से ये देखो अभी भी पानी इतना है, यहाँ आने जाने की भी परेशानी हुई हुई है। यहाँ बंदा ना अपने घर को सेफ जा सकता है ना आ सकता है। पानी का इतना सा भी खतरा 4-3 दिन से ऐसे जमा हुआ, ना मस्जिद जा सकते हैं ना मस्जिद से आ सकता है कोई भी। बच्चों के लिए बहुत मसला हुआ है। परसों मेरे बच्चे पूरी रात इस कोने पे खड़े रहे, नहीं आ सके, इस पार तक नहीं आ सके। बहुत तकलीफ है, बहुत बुरा इंतज़ाम है, बहुत बुरा इंतज़ाम है। अभी एक मेरे जानने वालों में से मेरा एक बच्चा गटर में गिर गया, वो बच्चा मिला नहीं अभी तक। नाले के अब आफ्ता सूरत कर दी है। मेयर मुर्तज़ा आप तो साहब सो रहे हैं, ये इनको दिख नहीं रहा, पूरा देखें क्या हाल कर दिए। ये गुलशन से चलता हुआ नाला केडिया तक जा रहा है, ये अभी बना आगे टूट भी गया। सफाई की अब बदतरीन सूरत हाल है। अक्सर लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, फैमिलियाँ गिर रही हैं। ये देखेंगे मेन रोड का नाला है, ये कोई दूर नहीं है, सामने फ्लैट बने हुए शमीम के, आप देख सकते हैं किस तरह नाले की बदतरीन सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि हम एमडी वाटर कॉरपोरेशन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा करते हैं कि इसका नोटिस ले और हमारे इलाके के मसाइल अव्वल तरजीह की बुनियादों पर हल किए जाएँ। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 गुलशन शमीम यासीनाबाद पर बारिश से कबल और बारिश के बाद भी गटरों की सफाई ना हो सकी। ताजिर बिरादरी और नमाजी सख्त हैं परेशान। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ जुनैद हसन सिद्दीकी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।